It's not even giving me an option of saying stop. Oh, now it's beginning. So good afternoon. What my plan for today is that I am assuming that most of you would have held your client interview session on your own according to the groups that I made for you. And I would want one person from each group to make a 3 to 4 minute presentation telling us what happened in the group. So the kind of information we are looking for is every group supposedly had four, but I'm sure that every group did not have actual four present in today's activity. So you will tell us how many people were present, how many, whether there were three people. So did you do 3 rounds of interviews, or you did just only 1 round of interview? So that's the kind of information that we are looking for. That's the substantive, the descriptive part of it. But equally and more importantly, actually, is for you to tell us what is it that you learned. What is it that, what were the kind of things you noticed that you were, which were missing in the manner in which you conducted interview, and you learned from your colleagues when a feedback happened. So I do hope that there were conversations after the exercise to help each other identify what is it that you did good and what is it that could have been done better. You can do a self-reflection also, that when I did it and I watched the other person, this is what I noticed. And I will try and focus that for my own self in future. I'll improve those kind of things. So that's the kind of 3 to 4 minute presentation we want for one person from each group. The rule is simple. Today, the rule of video doesn't apply. But if you can, when you're making a presentation, if you can switch on your video, it will be very good. But even if you cannot, because of your bandwidth or whatever other issues you have, that's all still all right. But only those people will speak today who haven't opened their mouth till date in this class, in this semester. So all the silent ones will have an obligation to speak today. So if somebody says, I will present for the group, and even if I don't remember, but if you remember that, no, this person has spoken earlier, you're going to say, no, ma'am, he or she cannot present, somebody else in the group has to. Because we have said that this is a skill learning class, and communication is a very important skill which each one of us will have to learn. And it is important life skill. It's not only for profession, it is for judges, it is for the businessmen, it is for husbands, wives, families, friends, teachers, you name it. It's a human interaction skill. And therefore, everybody has to brush up. So when the presentation is complete, what we would want the others, not only to pick up the information which comes in, maybe the same thing happen in your group or something different happen in your group. So keep comparing that. But we also want you to focus on communication. The presenter, how effectively has that presenter made the report of the group activity? There are two things. One is, what is it that they're saying? In substance, if all the members have participated, then we'll make an exception. But if, and this will be very strange that even in this setup, if that's the group, then that's okay. If all the four have, but if all the four haven't, then the one who hasn't spoken will come. This was a chat question being asked. So there are two things you're going to notice, learn from these presentations. One, what is it that you can also pick up from your group or your own presentations? Something your group may not have focused on, but somebody else has. So substantive improvement of learning. Second one, focusing on communication, effective communication. So we will also give a feedback. When we're effective communication, we're talking about pauses. We're saying do not read, do not have a straight tone. So you should have pitch, you should have paces, pauses, all that we talked about. All that we'll be also noticing. And if there will be certain learning points, so keep jotting down. So are we ready to present? Somebody saying something? Do you have the list, or should I take out the list to say who has to present first? We'll go, in the sequence that your presentations are supposed to happen. And the groups are formed.
alphabetically. So okay, the first group starts with Asta. In this group, we have Asta, Abhishek, Akash, Akshay. Anybody who hasn't spoken so far? Anybody present in this group? Asta, are your group members present? Akshay is here. So Akshay, are you presenting? Your voice is not clear. Okay, ma'am. Okay, great. So, ma'am, hello, ma'am. Yes. No. Don't say only hello, ma'am. You have to say hello to your whole class because you're presenting to the class. Hello, class. So, अभी क्लास को क्लास ही बोलोगे? हाँ. क्लास तो फेलोज है आपकी कि क्लास है ये आपकी? क्लास फेलोज हैं. हाँ तो फिर? तो पहले मैं और आकाश ने किया था. ये भी मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो हिंदी में बोलना चाहते हैं हिंदी में बोल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है जी. सॉरी. पहला मैं और आकाश गुप्ता ने डिस्कस किया था, और जिसमें मैं क्लाइंट था और आकाश काउंसलर था. और फिर उसके बाद आस्था और आकाश ने जिसमें आस्था जो थी काउंसलर और आकाश क्लाइंट, और फिर बाद में मैं काउंसलर बना और आस्था क्लाइंट. 3 ही ग्रुप बने और अभिषेक एब्सेंट था. ओके. तो क्या लर्निंग क्या है ग्रुप की? आकाश ने अच्छा किया, आस्था ने तो अच्छा किया ही ऑब्वियसली. मेरा बहुत बेकार था. आकाश ने क्या अच्छा किया और आस्था का क्या ऑब्वियसली अच्छा था और आपने क्या बहुत बेकार किया? तो ये ना सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं ना उसने अच्छा किया उसने खराब किया, दीज आर नॉट लर्निंग थिंग. आपको डिटेल बतानी है कि मैंने खराब किया क्योंकि मैं अटक गया, मैं इसी सवाल नहीं पूछ पाया, सोच नहीं पाया क्या पूछना था. अगर आप सब्सटेंस देते हो तो पता चलेगा कि भाई क्या चीज पे फोकस करना था. आस्था का अच्छा क्यों था, उसने जो जो स्टेप्स थे हमारे वो सब फॉलो किए. पहले उसने कंफर्ट जोन बनाया, फिर जैसे इस तरह से बताएंगे तो मालूम चलता है कि क्या एक्चुअली जी. आस्था का प्लेसिंग क्लाइंट एट ईज अच्छा था. एम्पैथाइज किया आस्था ने, और फैक्ट्स बिल्कुल चेक किया, एक्सप्लेन किया लॉ को बाद में, और टाइम मैनेजमेंट में अच्छा था उन दोनों का. ओके. और आपका क्या खराब था? ये मॉडेस्ट था, ये मॉडेस्ट जवाब था क्या असल में बता रहे हो? हेलो. हाँ, ये मॉडेस्टी में कह रहे हो कि मेरा खराब था, ये सच में खराब था? No, I was not that good. Why was you not good? What was it in your presentation which wasn't good? इंटरनेट कनेक्शन. अरे वो तो आपके हाथ में थोड़ी है. It's not in your hand. जो आपके हाथ में चीज है उसकी बताओ. फैक्ट्स को सही से एक्सप्रेस नहीं बता नहीं पाया मैं, और जब मैं काउंसलर बना तो उनको एडवाइस नहीं दे पाया. देखो एज अ क्लाइंट क्या गड़बड़ किया वो तो अलग कहानी है. वो सारे क्लाइंट्स कैसा भी आ सकता हमारे पास क्लाइंट, that you cannot hold. As a lawyer, एज अ लॉयर मैंने लॉ को नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ओके. हाँ. मगर आपने उनको कंफर्ट लेवल उसका कंफर्ट प्लेसिंग इज सब अच्छा था. स्टेटमेंट दिया था कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, फीस का क्या सिनेरियो है, कंसल्टेशन फ्री है कि नहीं है. आस्था का इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं था तो नहीं कर पाया. There were some issues with the internet. So second group. Hello everyone, good afternoon ma'am, good afternoon everyone. कौन बोल रहा है? Ma'am, it is me Anil Singh in the second group. अनिल सिंह तो मेरे सेट ग्रुप में है ही नहीं. अनिल सिंह तीसरे ग्रुप में है. पहले हैं आलोक गौतम, आलोक कुमार, अमन कुमार. Okay, इनमें से कोई प्रेजेंट है?
इनमें से कोई प्रेजेंट है? दो आलोक एंड दो अमन। यस मैम। यस मैम। हाँ जी। राइट। दोनों अमन पहले बोल चुके हैं कि एक अमन बोल चुके हैं पहले? नहीं, हम लोग बोल चुके हैं। हाँ, सारे चारों बोल चुके हैं। नहीं, आलोक नहीं है मैम, शायद प्रेजेंट नहीं है, आई थिंक। दोनों आलोक मिसिंग है, दोनों अमन बोल चुके हैं। हाँ, कोई बात नहीं, बताइए। अक्षय, आप नोट कर लें अपने आप को। मैम, एक स्टूडेंट एब्सेंट था, तो हम लोग 3 लोगों ने किया। 2 राउंड्स किए हम लोगों ने। एक चेक बाउंस का इशू था और एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। सो मैं एक बार क्लाइंट बना था, एक बार लॉयर बना था। मुझे लगा कि यह जो प्रॉब्लम आ रही थी वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर आ रही थी कि एक केस काफ़ी लंबा चला गया, एक केस काफ़ी छोटे छोटे में डिस्कस हो गया। तो मुझे लगा कि टाइम मैनेजमेंट कोई छोटा सा इशू था, और बाकी आई थिंक जैसे कि क्लाइंट को एट ईज करना होता है, या फिर किस तरह से, या फिर फीस डिस्कस करने होते हैं, क्योंकि चेक बाउंस का जो इशू था मैम, उसमें 30,000 रुपये का एक चेक बाउंस हो गया था। तो क्लाइंट का ये कंसर्न था कि फी क्या होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि 30,000 का चेक बाउंस हुआ है उसमें उससे ज़्यादा फी लग जाए। तो ये एक नया इशू मुझे पता चला। तो और बाकी मैम थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आया बीच में, तो सही से कंप्लीट हो नहीं पाया हम लोग का। बारिश की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, कहीं बारिश भी हो रही थी। ओके, दूसरे अमन को कुछ कहना है, ऐड करना है कुछ? मैम हम लोग का मैम ठीक हुआ था मैम। एक जो मैम मेजर दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे कि मैम जो हम लोग के क्लाइंट थे वो अगर हमें अपना दूसरा नाम मतलब बता के इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो हम लोग मतलब वैसे तो याद रह रहा था, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे जो उनका ओरिजिनल नाम है हम लोग वो ले रहे थे, तो वो कहीं मुझे एक लगा कि ड्रॉबैक हम लोग का हो रहा था। हाँ। और 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 मैम ये जो पॉइंट हम एक्सप्लेनिंग द लॉ मैम, उसमें थोड़ा इशू हो रहा था मैम, क्योंकि मतलब बेसिक लॉस थोड़े पहले के हम लोग भूल भी हाँ गए मैम, थे। लीगल एडवाइस देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को, हाँ, सब कुछ मतलब पता चल रहा है ना कि हर कुछ पता नहीं दो होता साल है। में कुछ सीखा नहीं हम लोगों ने, पता चल रहा है। नहीं नहीं। नहीं होता है ऐसा, कुछ बात नहीं है, क्योंकि जो हम तो वैसे भी जो कोर्स भी पढ़ाते हैं कुछ लिमिटेड सेक्शंस पढ़ाएंगे, तो पूरा तो जी जी। लेजिस्लेशन पढ़ा भी दें तभी भी तो याद नहीं रहता है। एग्जाम के हिसाब से सारे पेपर पढ़े जाते हैं, तो नेचुरली धीरे धीरे करते रहेंगे तो आ जाएगा, ये भी कोई बात नहीं है। हाँ, नेक्स्ट। मैम, एक और प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व की, वो ऑनलाइन डिस्कशन में क्या हो रहा है ना कि बेसिक जैसे वो इंटर हुआ, तो बेसिक सैल्यूटेशन जो होते हैं ना कि आइए आप प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, ये सब इसमें जो है ना थोड़ा सा मतलब अजीब लगता कभी सामने वाला बीच में है। हाँ बेसिक इंटरप्शन हो जा पा रहा है बीच में, मतलब कभी वो बोल दे रहा है ये। तो ये एक्चुअली अगर ऑफलाइन हो रहा होता तो बेटर होता। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। दैट्स ट्रू। इनफैक्ट मैं ये भी जानना चाहूंगी, परसों के हमने जो एग्जाम सेट किया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमें वेरिएशन करनी पड़ेगी ना जब हम ऑनलाइन जी करेंगे। जी। तो जी जी। इसलिए भी मैं जानना चाह रही हूँ कि कल आज के आपकी एक्सरसाइज का क्या एक्सपीरियंस रहा। Yes. नेक्स्ट ग्रुप, अब अनिल बोल रहे थे पहले। जी मैम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड मैम आफ्टरनून। हमारा yes ma'am, we had a group of 4 in which I, Amit and Anand were there, and ma'am the fourth person we could not have contact with because he is not on WhatsApp or on any social media. And Anand also had some problem with his connection, so he had to leave in between. I and Amit had the full session of around half an hour, both, in which we did 2 cases. In which I was the first case in which I was acting as a lawyer was of a mutual consent of divorce as well as an FIR against the husband on sexual assault. तो मैम इसमें the case was good. He was I mean how I did Amit would tell better, but the second case I did as a client, ma'am, was somewhere similar to the case of Navjot Singh Sidhu versus State of Punjab.
of a sudden provocation and culpable homicide not amounting to murder. हेलो ये तो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हुई, लर्न क्या किया? जी मैम, लर्न ये किया कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि व्हेन वी आर स्पीकिंग वी आर नॉट इन द कैरेक्टर, आई गेस the other person, if he's like in my case when I was a client I was acting like a farmer. तो ऐसे में कई बार जब वो कुछ टर्म्स लीगल टर्म्स बोल रहे हैं तो आई एम नॉट सपोज टू नॉट ऑन इट कि हाँ मैं जानता हूँ. तो at that time I have to ask him, I have to be more I have to ask him more and more questions कि जैसे कि वो मुझे बता रहे थे कि आप पुलिस के पास जाइए, जबकि मैंने उन्हें बताया कि देखिए मैं तो एक किसान हूँ और मुझे तो डर लग रहा है कि मुझे तो वो पकड़ लेंगे, तो मैं तो पुलिस के पास नहीं जा सकता, आप मुझे बताइए क्या करना है. और मैम इसमें एक और चीज़ कि हम जो चीज़ भूल जाते हैं वो हम जब व्हेन वी स्टार्ट हम उतने फ्लो में नहीं होते, तो हम उनको एक प्लेज जो हमने एज अ लॉयर वी टेक कि हम सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उनको थोड़ा सा टू मेक द क्लाइंट एट ईज वी आर लिटिल बिट फॉरगेटिंग इन दैट. देन ज्यादातर ग्रुप्स बोलते हैं. जी 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 ज़रूरत भूल जाते हैं मैम. और फिर उसके बाद मैम चेंज ऑफ द फैक्ट, या फिर उनको वो बताना कि हम फैक्ट सारे गैदर तो कर लेते हैं लेकिन उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, वहाँ पे वी आर नॉट गुड. इन आवर ग्रुप आई वाज नॉट गुड एट, आई थिंक. एंड देन मैम अबाउट एडवाइजिंग वी आर मोर लाइक पुशिंग इट फॉर टुमारो कि कल एफआईआर लेके आना, या फिर कि तब हम बताते हैं. तो हम अच्छे से कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं शायद मैम उसको, केस को एज अ. नहीं, जितना देखो जो आप एक्सरसाइज किया है तो अभी आप लोगों के पास प्रूफ बने हुए हैं, आप अपने परसों तक और भी ब्रश अप कर सकते हैं. जी जी मैम. जितना आप करोगे, आपसे बातचीत करोगे तो उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. जी तो जी अपना चाहे इनफॉर्मल ग्रुप्स में मत करो, जो अपने आपके फ्रेंड्स वाले ग्रुप्स हैं वो मैं थोड़ी मना करती हूँ उसमें नहीं कर सकते बात. मेरे रिपोर्टिंग के लिए ये ग्रुप्स जरूरी है. अगर आप अपने फ्रेंड्स लेवल पे तो कितने ही बातें कर सकते हो ना, एक दूसरे को मदद, जितनी लर्निंग आपके पेयर से होगी इस वक्त में, इतने बड़े ग्रुप में टीचर नहीं सिखा सकता आपको इंडिविजुअली सब लोगों को. ये आपको पेयर लर्निंग ही करनी पड़ेगी और ऑनेस्टली एक दूसरे को फीडबैक देना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट ग्रुप. हेलो मैम एंड क्लास, आई एम अंकित चावला. मैम आज हमने शुरू किया था, हम में से 2 लोग जो हैं वो भी रिकवर कर रहे हैं कोविड से, और एक जो अनीश जी थे उनके एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम थी. तो फिर भी हमने कुछ शुरू किया था, हमने टॉपिक डिस्कस किया था 304A ऑफ आईपीसी. इसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस की बात होती है. तो उसमें हमने अभी एज पर मतलब जैसे डिस्कशन करनी थी डिस्कशन कर रहे थे, बट वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन लाइक हमें प्रोसीजर्स नहीं पता है बिल्कुल भी. जैसे हम आपस में डिस्कशन जो भी कर रहे थे तो हमें ये नहीं पता था कि अब एफआईआर हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, या उसका लीगल रेलेवेंस हर चीज़ का मतलब 304A है तो उसके आगे उसको कैसे हम प्रूव करेंगे कि वो 304A इधर नहीं हो रहा है, ये ओनली नेग्लिजेंस है, ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है. तो कहीं ना कहीं हमें भूल भी गया कि टॉर्ट्स एंड क्राइम में दोनों में ये रिलेशन करना था इसमें ना, कि ओनली नेग्लिजेंस था या ग्रॉस नेग्लिजेंस था. तो इसमें हमें प्रॉब्लम काफ़ी आ रही थी, लेकिन हमने अभी क्लास के बाद हम करेंगे इसके, वी विल कंटिन्यू विद क्योंकि इट. जहाँ जहाँ जो लॉ नहीं आ रहा है और आपके कन्वर्सेशंस में आ रहे हैं तो वो तो लॉ निकाल के देख ही सकते हो ना. थोड़ा हाँ ब्रश जी अप हाँ भी जी हाँ कर लो, जी, क्योंकि एग्जाम के लिए पता नहीं आपका क्लाइंट कौन सी प्रॉब्लम लेके आएगा. तो थोड़ा अपने बिल्कुल. कागज ना दोबारा से निकाल के देख भी लो. हाँ जी मैम. हाँ, जो ये मतलब लॉ के पेपर्स हैं, सो ब्रश हाँ अप जी सम ऑफ द नॉलेज जो स्पेशली जो आपके निकल के आ गई आपके अपने इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस में भी. इस एरिया में हाँ जी क्लैरिटी मैम. चाहिए तो वो जाके हमारा किताब देख लो, या नेट पे भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन आजकल नेट पे अवेलेबल है. किताबें तो बिल्कुल ऐसे मैम. लाइब्रेरी आजकल है नहीं, मगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक्सेस करते हो? नहीं मैम अभी तो नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल और उसका ईमेल, पासवर्ड. ऑफिशियल ईमेल आई जिसके पास में है वो कर सकता है. घर से हम पूरी लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है पूरी हम एक्सेस कर सकते हैं.
तो चलिए नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप में कौन है? अभी प्रेजेंटेशन किसने दिया था, नाम भूल गया। मैम अंकित चावला। अंकित चावला। अच्छा, ये ग्रुप हो गया। तो अंकित के बाद का ग्रुप है अनुज कलशन, अनुकृति, अरुण चौधरी, अरुण प्रताप। कोई प्रेजेंट है इनमें से? यस मैम। हेलो हेलो। जी यस मैम। हेलो। yes present, we are able to hear you. Am I audible? Yes, you are audible. Yes. Abhishek, please mute yourself. Abhishek, mute yourself. Hello. Abhishek, Hello. Wait, ma'am. Abhishek, mute yourself, please. Yeah, yes, Arun. Good afternoon, ma'am, and hello everyone. We हमारे ग्रुप में अनुकृति है, अनुज है और अरुण, और मैं हूं अरुण प्रताप। हम लोगों ने 2 राउंड में डिस्कस किया, जिसमें एक थेफ्ट का केस था और एक मारपीट का था। जिसमें फर्स्ट राउंड में अनुज और अरुण, अनुज क्लाइंट था और अनुकृति एंड अरुण लॉयर थे। और सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड में मैं ऑब्जर्वर था और सेकेंड राउंड में हम लोगों ने स्विच किया था। तो हम चारों ने अटेंड किया और मैंने जो ऑब्जर्व किया उसमें से मैंने जो अपने मैम लिस्ट दिया था उसमें से कुछ, जैसे कि प्लेसिंग क्लाइंट एट ईज, वी वर वेरी गुड, मीन्स वेरी वेल, एंड ऑल्सो इंटाइसिंग फैक्ट मीन्स अनुकृति एंड अनुज वाज काफी कोऑपरेटिव थे उस क्लाइंट से, और वो दोनों अच्छे से फैक्ट को इंटाइस किया और एम्पैथाइज किया क्लाइंट को, और फैक्ट को भी चेक किया। और हम लोगों का बेसिक प्रॉब्लम था कि उसमें लॉ कैसे अप्लाई करना है। एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट लॉ इज अप्लाइंग, मींस सबकी प्रॉब्लम यही थी कि आगे क्या होगा, क्या सजेशन देना है बेसिकली क्लाइंट को। सो ये हम लोगों का बेसिक प्रॉब्लम था। और अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट में हम लोगों ने 35 मिनट किया, 35-40 मिनट, जिसमें 2 राउंड था। तो मुझे लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा था। और रीअश्योरिंग क्लाइंट के बारे में मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने काफी अच्छा किया। जो उसमें से केस था, केस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लाइंट को एश्योर किया और उसे बताया कि आगे क्या करना है, कैसे हैंडल करना है चीजों को। फी के बारे में भी हम लोगों ने बताया एज ए क्लोजिंग स्टेज पर। फी के बारे में रिलेटेड सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने उसे समझाया। सभी ने पार्टिसिपेट किया, काफी इंटरेक्टिव था एडवाइस जो था। और हम लोगों ने फैक्ट को भी चेक किया और क्रॉस चेक भी किया, जिस वजह से मुझे लगता है कि अगर मैं ऑब्जर्व किया हूँ तो वो वेरी वेल था। तो ये मेरा था। और नोट टेकिंग में हम लोगों ने नोट टेकिंग भी की, लेकिन फर्स्ट राउंड में शायद अनुज ने वो नोट नहीं किया, लेकिन अनुकृति वो कर रही थी नोट फैक्ट के बारे में और लॉ के बारे में, और वो एक्सप्लेन भी कर रही थी लास्ट में दोनों ने। तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा था, इंटरेक्टिव था, पॉजिटिव था। इनफैक्ट बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही, क्योंकि आपने पूरे सिस्टमैटिकली आपने पूरे पॉइंट्स के ऊपर हमें फीडबैक दिया। इसमें मेरा एक सवाल है कि जब आप चारों लोगों ने, शायद मेरा मानना है कि आप चारों ने ही ये फीडबैक फॉर्म भरा था, तो कंपेयर किया था जो सेल्फ असेसमेंट की, जैसे अगर अनुकृति ने जहां जहां आपने टिक किए, उसने बोला ये मैंने बहुत अच्छा किया, ये मैंने अच्छा नहीं किया, ऐसा कुछ किया होगा, तो वो आपके नोट से टैली करता था कि फर्क था? ये वो लास्ट टाइम मैं कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, वो हम लोगों को कंपेयर नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो उन लोगों ने किया है
वो मोर और लेस लगभग सेम था, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों को काफी अभी सीखना है, इम्प्रूव करना है, तो वो काफी नहीं, क्योंकि अभी आपके फर्स्ट राउंड ही था, आप लोग 2-3 दफा Yes, ma'am. करोगे और उसके बाद जब कंपेयर करोगे, मेरी सेल्फ असेसमेंट में मैं सोचती हूँ ये मैंने अच्छा किया है, Yeah. पर दूसरा सोचा कि नहीं उतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने Yes, क्या ma'am. देखा जिस वजह से सोचा कि इतना अच्छा नहीं था, वो करेंगे तो बहुत लर्निंग इम्प्रूव होगी। इसमें मेरी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा मुझे अपने इम्प्रूव करना है। काफी हेजिटेंट था, मैं पहली बार बोल रहा था और अभी भी मैं शायद पहली बार क्लास में बोल रहा हूँ, इंटरेक्ट हो रहा हूँ, तो मैं काफी हेजिटेंट था। बाकी तीनों काफी फ्लुएंट थे, तो ये मुझे इम्प्रूव करना है। और बेसिक चीज है जो लर्न करना है वो एक्चुअली लॉ के बारे में। वी वर वेरी ब्लैंक at the point of law, so we have to understand, we have to हाँ, improve अब on इस कोर्स की लिमिटेशन ये है कि हम आपको लॉ नहीं पढ़ाएंगे इसमें, हम yes तो आपको बोलना ही सिखाएंगे, yes पर्सुएड करना सिखाएंगे, तो इस कोर्स का फोकस डिफरेंट है, तो लॉ तो खुद ही सीखना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ Yes. लॉ नहीं आ रहा है, तो नेचुरली कुछ चीजें तो लॉ में, अब कितने इतने साल से मैं भी पढ़ाती हूँ, मुझे भी सारे लॉ तो नहीं आते ना, तो लॉ तो Yes. इतना वास्ट एरिया है कि आपको सारा आ नहीं सकता है, पर इस स्टेज में नेचुरली आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि एक ब्रांच ऑफ लॉ, अगर हमें सब 304 मालूम भी है, तो उसके साथ में अवेलेबल है कि नॉन अवेलेबल है। इसमें Yes. जो कल भी बात हो रही थी कि कौन से केसेस में एफआईआर हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने ये सब हमने पढ़ा तो था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, तो जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें एफआईआर नहीं हो सकती है, उसमें सिर्फ रिपोर्ट दायर होती है। Yes. तो हम लोगों को वो डिस्टिंक्शंस बताई तो गई थी एक स्टेज में सीआरपीसी में, पर हमें ये जो क्लैरिटी से समझ आता है वो जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तब समझ में आता है। तो अभी आपकी Yes. जब सिमुलेशन चल रहा है तो पता चलेगा कि नहीं, जहाँ पे आपका सेक्शन कोई जो भी आप अगर जितने भी क्रिमिनल केसेस आप देखेंगे तो आपको इमीडिएटली वो शेड्यूल 1 चेक करना चाहिए सबसे पहले, अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, फिर ट्राइबल बाय विच कोर्ट है, जो उसका पूरा टेबल है वो देखना चाहिए। इससे आपको खुद भी क्लैरिटी थोड़ी सी आएगी ना, तो आप अभी जैसे सीख ही रहे हो, तो जो सेक्शन जो अगर आपको लेजिस्लेशन आपके पास है या नहीं है तो नेट पे भी देख सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन निकाल लो और उसके Yes. बाद में फिर एडवाइस दे दो कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आपने ले ली उसमें। अब मैं ये भी सजेशन है कि अब जो सेकंड राउंड अपने आप कर लेना, तो उसमें आप लोग ना 2-2 की टीम में करो, ऑब्जर्वर का जी। छोड़ दो, 2 जने लॉयर बनो, 2 जने क्लाइंट एज अ ग्रुप जाओ। तो जो 2 लॉयर हैं वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं कि अगर लॉ में सपोज एक को नहीं आ रहा है तो दूसरे को हो सकता है आता हो। सेकेंड राउंड में हम लोगों ने, मैम ने ऐसा किया था, सेकेंड राउंड में हम लोगों ने ऐसा किया था। तो एक्चुअली जो मेरा लॉयर था, फर्स्ट लॉयर था अनुज, वो सही था, मैं ब्लैंक था और हेजिटेंट था, तो वो प्रॉब्लम थी एक्चुअली। आप देख लीजिए जैसे आप लोगों को होगा, मगर एक्सपेरिमेंट करते रहिए और जितना करेंगे उतना ही आपका, जैसे कहते हैं ना हाथ साफ होता है प्रैक्टिस से, तो आप लोगों की जबान साफ हो जाएगी, आपका हेजिटेशन निकल जाएगा। तो वेरी गुड अरुण, वेरी वेल डन। थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप आशीष। Hello, hello. जी आशीष, Am I audible? यस यू आर। Hello everyone. Good afternoon. Myself Ashish. हम लोगों ने 2 बार सिमुलेशन एक्सरसाइज की, उसमें 2 पर्सन्स थे और 2 पर्सन्स का कांटेक्ट नहीं हुआ। 1 पर्सन तो स्लो इंटरनेट की वजह से नहीं आ पाया और 1 पर्सन का कांटेक्ट मिल ही नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने 2 राउंड किए, उसमें एक क्रिमिनल केस था मेरा और दूसरे पर्सन का एक मैट्रिमोनियल इशू था डाइवोर्स को लेकर। तो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि एक्चुअल लॉ क्या है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या लॉ के जो इशू है क्लाइंट का उस पर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उस इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग उसमें कौन सा सेक्शन लग सकता है। और ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक डाइवोर्स के लिए कोई पर्सन फाइल करना चाहता है तो उसमें एक तो म्यूचुअल कंसेंट के लेकर हो गया, दूसरा पर्सन कंसेंट नहीं कर पा रहा है, तो कौन कौन से ग्राउंड्स को लेकर वो डाइवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है, वो ठीक से ला मुझे पता नहीं था। और एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर जो इशू था उसमें तो उसमें जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जो
इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मुझे ठीक से पता नहीं थे, उसको लेकर मुझे इशू आ रहा था। तो सबसे जब पहले मुझे इंटरव्यू लगा कि सबसे पहले लॉयर जो है उसको एक एक्चुअल लॉ पता होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन सा, किस फैक्ट्स पे कौन सा सेक्शन बन सकता है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए एक्चुअल लॉ क्या है। तो जब ये इंटरव्यू में पता चला कि इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है, तो इंटरव्यू के बाद में किताब खोल के देखी, लेजिस्लेशन खोल के देखा, अपने आप को ब्रश अप किया। यस मैम। हाँ, वो करते रहेंगे तो आ जाएगा, सब आ जाएगा धीरे धीरे, इसमें घबराने की बात नहीं है। पर आइडेंटिफाई करना कि हमारी कहाँ कमजोरी है। जब हम कहते हैं ना क्वालिटीज ऑफ अ लॉयर, तो हम नेचुरली इसमें मान के चलते हैं कि उसको लॉ आता है। और अगर यस लॉ मैम। आता नहीं है, क्योंकि हम 3 साल में आपको लॉ नहीं सिखाते, हम 3 साल में आपको ये सिखाते हैं कि लॉ को ढूंढा कैसे जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है। जैसे अगर आपको नहीं भी पता है तो अपना निकालो, रजिस्ट्रेशन खोल के देखो क्या लिखा है इसमें, उसको पढ़ना सिखाते हैं कि लॉ तो रोज बदलता रहता है। हमने अगर आपको फर्स्ट सेम में कुछ सिखाया था, उसके बाद अमेंडमेंट हो गई, तो लॉ तो चेंज हो जाएगा जब तक आप पास हो गए। So we do not rely on the classrooms for learning law. These are only to learn how to find law, how to read law, how to interpret it, how to apply it. लॉ क्वेश्चन भी हो सकता है। तो अगर आपको वो टेक्निक आ जाएगी तो फिर ये चीज दिक्कत जो आ रही थी कि हमें ग्रेन पता नहीं है, नेचुरली अभी तो ये तो एरिया था जो आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। पर बहुत सारे केसेस आएंगे जो एरिया आपने हमारे कोर्स में ही नहीं होता, या कोई ऐसा सेक्शन जो हमने आईपीसी में नहीं पढ़ाया, तो वो भी तो आएंगे ना। तो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं करनी चाहिए इसमें। आप ना लेजिस्लेशन तभी खोल के देख लेना चाहिए, तो थोड़ा यस आपको भी मैम। क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, अभी अपने प्रैक्टिस सेशंस में भी आप तभी के तभी बोलो ना, तो अपने क्योंकि इनफॉर्मल लेवल पे तो आप कर सकते हो ना, रोको 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 रोको, 1 मिनट रुको, मैं देंगी अभी, फिर देन आई कम बैक, आई नीड अ 2 मिनट ब्रेक। 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक दो, फिर जाके लॉ को देखो और फिर एडवाइस दो। यस मैम, जैसे कि क्लाइंट के रूप में मैं एक्ट कर रहा था, तो उसमें तो फैक्ट बन जाते थे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बना लिए जाते थे, लेकिन लॉ के लिए उसी समय नहीं बनाया जा सकता, क्या है उसी समय नहीं नहीं नहीं, वो देखा आपको किताब खोल के देखनी पड़ेगी। जाता। यस मैम। give me a minute, I just revert to you। तो वैसा करके अपना खट से निकाल के देखो कि कैसे हम इसमें कौन सा क्योंकि अभी तो हम एकदम फेमिलियर ग्राउंड में बात कर रहे हैं। नेचुरली एक्चुअल यस मैम। लॉ में तो आपको नए 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 ग्राउंड आएंगे, तब आपको ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि लॉ को ढूंढना कहाँ से। इसलिए हमने अब क्या है कि नेक्स्ट मंडे को हम पहले रिसर्च वाला सेशन करेंगे, जिससे आप लोग अपना मूड कोर्ट में तैयारी कर सकेंगे। वेल डन। नेक्स्ट ग्रुप। हेलो मैम। ये चाहत। यस मैम। मैम हमारे ग्रुप में देविका, चुमय, दीपक और चाहत, हम चारों थे। हम लोगों ने इनिशियली 15 मिनट सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए रखे थे, क्योंकि हम किसी को भी ऐसे जानते नहीं है। तो हमने पहले अपने मेरिट्स डीमेरिट्स काउंट कर लिए थे कि हमने कितनी क्लासेस ली हैं और हमने क्लासेस में अब तक क्या क्या ग्रास्प किया है। तो चुमय काफी अनकंफर्टेबल थी, उन्होंने बोला कि वो ज्यादा नहीं जानती हैं, वो ना ज्यादा बोलती हैं। और ये चीज दीपक के साथ था कि उन्हें थोड़ा सा हिंदी स्पीकिंग में था कि क्या कहते हैं, हिंदी में तो नहीं होगा। तो मैंने ये चीज क्लियरली बोल दी थी कि हमारे लिए मोटिव यहाँ पे सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, ना कि हमारा लॉ। क्योंकि वो तो हम ऑब्वियसली थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि हम कुछ ना कुछ तो करके आए हैं, तो लॉ तो हम सीख ही जाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी हमें अपना कंफर्टेबल लेवल देखना था, तो हमने 15 मिनट सिर्फ इंट्रोडक्शन के रखे थे। उसके बाद मैं और दीपक क्लाइंट बने थे और देविका और शुमय जो है वो लॉयर बने थे। जहाँ पे मुझे सिर्फ ये दिक्कत लगी, क्योंकि हमने प्रेपोजिशन पहले एक डिस्कशन नहीं किया था, मैंने और दीपक ने। तो हम लोगों को दिक्कत ये आ रही थी कि मैं कुछ लाइन बोल रही हूँ और दीपक कुछ और बोल रहा है, तो वो इंटरप्शन हो रही थी। अब जैसे मैंने बोला कि स्कूटी की राइट साइड डैमेज हुई है, तो उसने लेफ्ट साइड बोल दिया कहीं पे, तो कहीं पे हमारी डेट भी इधर उधर हो रही थी। तो बस मुझे सिर्फ यही लगा। बाकी देविका और शुमय ने काफी कंफर्टेबली हमें बोला कि आप आइए, बैठिए, हमें बताइए। तो वो इंटर्न्स का रोल प्ले कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आप हमें बताइए इनिशियल केस जो भी है, फिर उसके बाद हम अपने सीनियर से डिस्कस करके आपको फाइनल बताएंगे कि हम क्या करेंगे। हमने ऐसे नहीं किया कि वो डायरेक्ट हम लॉयर से मिले, हम लोग पहले इंटर्न से मिले हैं और उसके बाद वो अपने सीनियर लॉयर के पास जाके हमारा केस डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो हमें
कॉल करके बताते कि वो हमारे केस में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो मैम गुड ये स्ट्रेटेजी, गुड स्ट्रेटेजी। थैंक यू मैम। हाँ, बस तो बाकी मैम ऑब्जर्वेशन हम नहीं कर चुमई पाते चुमई क्योंकि चुमई आप कुछ बोलना चाहते हो? Want to add something to what Chahat has said? Yes, ma'am. Since I don't have much knowledge about since I couldn't explain the law properly to them, so I just said ki I'll talk with my senior lawyer and then I'll get back to them. Hmm? So I Yeah, think what is it that you did well in today's interaction? I think I did well in placing client in keeping client at ease and keeping them calm. Other than that, I think I'm lacking in very much all the skills, I think. Okay, Deepak? दीपक, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम। देन बस यही कहना चाहूँगा मैम कि जो क्लाइंट से मेरा और चाहत का जो क्लाइंट को लेकर जो एक प्रीपोजिशन थी जिसपे हमें जाके एडवोकेट से बात करनी थी, वो हमने पहले डिस्कस नहीं की, जिसकी वजह से हमारा आपस में जो एक फैक्ट्स को लेके जो तालमेल होना चाहिए तो वो नहीं बैठा। चाहत ने बता दिया, वो तो चाहत ने बता दिया। जो चाहत ने और चुमय ने नहीं बोला हो, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं? नहीं मैम, बाकी सब ठीक और सेम है। कोई आप लोग लॉयर बने थे, एक ही राउंड किया था? मैम एक ही राउंड किया था। एक्चुअली टाइम नहीं था और हमको लेट पता चला था कैसे ग्रुप डिवाइड हो गए हैं, तो मैं सबसे लेट उठी थी, तो इसीलिए वो सबसे, क्योंकि 1 बजे के बाद बस इतना ही टाइम मिला था कि हम इंट्रोडक्शन और पहला राउंड ही कर सके, तो हमने अभी तक ऑब्जर्वेशन भी नहीं किया था। एक्चुअली हम लोग कंफ्यूज थे कि हमें 17 से पहले ऑब्जर्वेशन करना है पार्ट 1 या फिर हमें अभी करना है। नहीं, तो वो जो आपका चार्ट दूसरा वाला है, क्वेश्चनर वाला जो है, वो एग्जाम पे करना है। अच्छा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ? हाँ, वो वाला उसमें उसी वक्त में करना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप। Hello everyone, myself Dinesh। हेलो और दिनेश। हमारे ग्रुप में 4 बंदे थे, लेकिन 2 से कांटेक्ट नहीं हो पाया अभी। लेकिन थोड़ी देर बाद दिव्या से कांटेक्ट हो गया, वो आ गई, लेकिन मैं और हर्षित ही कर पाए डिस्कस आपस में। तो बेसिकली मेरे को कहाँ प्रॉब्लम आई, हमें अभी नॉलेज नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एक चाइल्ड मेंटेनेंस का केस था, तो हमें पता नहीं कि उसमें वेटेज कैसे डाला जाए, क्योंकि चाइल्ड मेंटेनेंस के केस में मतलब क्लाइंट का थोड़ा वेटेज ज़्यादा दिखाना पड़ता है, कि जैसे बच्चे को कुछ ज़्यादा पैसा चाहिए उसको संभालने के लिए, उसके लेवल के लिए, और ये भी देखना होता है कि सामने वाला कितना कमा रहा है और उसके कितने खर्चे हैं, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा वेटेज दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए एक्चुअल नॉलेज चाहिए। हो सकता है मैम ने जो बोला है कि एक लॉयर को हम साथ में रखेंगे अपने पास, ताकि वो उसमें सर्च कर सके और बाकी फिर बता सके, इससे नॉलेज भी बढ़ेगी और एक्चुअली इट कैन वर्क, आई थिंक। इनफैक्ट जब टीम में करेंगे तो ये देखिए, एक जना सिचुएशन को सुन रहा है, जो इनिशियल पार्ट है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा जना उसमें लॉ की सर्च करना शुरू कर ले, तो फिर लीगल एडवाइस दूसरा बंदा दे देंगे पता करके कि हाँ, तो एक कान यहाँ भी रहना, क्या बात चल रही है, और वहां पे भी देखना पड़ेगा। जैसे मुटकोट में होता है ना, कि जब चल रहा होता है तो कोई इमीडिएट कोई नया पॉइंट निकला है तो तभी ऑन द स्पॉट रिसर्च करते हैं, तो वैसे भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप। गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून हेमंत तो एवरीबॉडी। बोल चुके हैं। हेमंत के ग्रुप में और कौन थे? मैम इन माय ग्रुप ईशू, हिमांशु एंड ईश्वर, और ऑल आर। नहीं, ईश्वर तो आए हुए हैं नहीं है, तो इशू आई हुई है। ठीक है, चलिए। ईश्वर एंड हिमांशु। हाँ, ये तो नहीं है। चलिए बताइए। अब मैम हमने मैम चारों ने ग्रुप फॉर्म किया था, जिसमें कि 2 के उसमें डिवाइड कर दिया था। इन फर्स्ट आई एम बिकम ए लॉयर एंड ईशू बिकम ए क्लाइंट। मैम उसके बाद अदर जो 2 मेंबर्स थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। मैम स्टार्टिंग में ये हुआ कि
ईशू जो फैक्ट्स लेके आई थी और उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि वो एक इंश्योरेंस का मैटर लेके आई थी और इंश्योरेंस के मैटर में उन्होंने कहा था कि वो जो एक इंश्योरेंस कंपनसेशन का एक लेके आई थी, जो कि इंश्योरेंस में कन्वर्ट हो गया था, इंश्योरेंस के मैटर में कन्वर्ट हो गया था, जिसमें कि उनका कहना था कि उनका एक जो ड्राइवर है जो कि ईशू एक ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, तो उनके ड्राइवर ने एक एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट इन द सेंस कि जब वो गाड़ी चला रहे थे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाड़ी और वो गाड़ी से बाहर कूद गए जो ड्राइवर थे। तो उस केस में क्या हुआ कि उसके काफी इंजरी हो गई ड्राइवर को। तो ड्राइवर को इंजरी होने के बाद ये हुआ कि उसका जो ब्रदर और जो ड्राइवर थे वो इशू को हम फैक्ट्स में नहीं जा सकते हैं। आप रिपोर्ट दो हमें कि आपने लर्निंग क्या की इस वाली पूरी इंटरेक्शन में। यस मैम, इसमें ये लर्निंग मैम फर्स्ट पॉइंट पे जो मेरी ये रही कि प्लेसिंग ए क्लाइंट एट ईज और एम्फसाइजिंग विद ए क्लाइंट, वो मेरा काफी अच्छा रहा मैम उसमें, और जो अदर ग्रुप था उसका भी वो काफी अच्छा रहा था। लेकिन मैम मेरे साथ सबसे पहले ये प्रॉब्लम आई कि इशू विद कम विद द लिमिटेड फैक्ट्स। तो उसमें मैम ये रहा कि इलिसिटिंग द फैक्ट्स, जो मुझे फैक्ट्स पूरी तरह से इलिसिट करने थे वो मैं प्रॉपरली नहीं कर पाया उनसे। ओके, तो जो फैक्ट्स की एक लिमिटनेस थी उसकी वजह से प्रॉपर इलिसिटिंग ऑफ फैक्ट्स भी नहीं हो पाए। तो उसके बाद मैम जो मैं कंक्लूजन पे आ रहा था और या उनको एक्सप्लेन करना चाह रहा था लॉ, वो मैम प्रॉपरली नहीं कर पाया। तो मैम उसमें मैंने एज पर मैम नॉलेज मैंने उनको एडवाइस गलत कर दिया उस चीज पे, क्योंकि जो ड्राइवर को इंश्योरेंस के गाड़ी का इंश्योरेंस था उसमें थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस बोल दिया, जबकि मुझे बोलना चाहिए था कि ड्राइवर का इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो मैम यहाँ पे ये पॉइंट हुआ है। और उसके बाद उनसे जो रीएश्योरिंग द फैक्ट्स, मतलब उनके जो डाउट्स थे वो मैम सारे क्लियर किए, और नोट टेकिंग भी मैम मैंने की। बट उसके बाद मैम टाइम मैनेजमेंट में ये इशू आया कि इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म हो गया। मैंने अराउंड 15 मिनट का टाइम इशू जी से बोला था कि आप हम 15 मिनट तक इस इंटरव्यू को चलाएंगे, तो उनके कोई टाइम की रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि कोई टाइम की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में इंटरव्यू में मैम 7 मिनट या 8 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया। तो मैम लिमिटेशन कई बार क्या हो जाती है, लिमिटेशन रहती है फैक्ट्स की, तो उसमें जो लॉयर होता है वो प्रॉपरली बता नहीं पाता है। तो और उसमें लॉ भी अगर कोई हमें पता नहीं है उस लॉ के बारे में, तो उसमें एक कंक्लूजन ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए अभी तो हमारा क्योंकि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो गलत एडवाइस भी देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई एक्चुअल बंदा अफेक्ट नहीं हो रहा। पर रियल लाइफ में एक्चुअल बंदा अफेक्ट हो जाएगा। So it's a very, very responsible profession, and we'll have to be certainly working very hard to make ourselves aware of the laws. Yes, ma'am. और जो जहाँ पे अनसर्टेनिटी है तो आप कह सकते हैं कि अभी हम और चेक करके ना ठीक से फिर बताएंगे आपको। तो आपकी मैंने पूरी बात सुन ली है, बट आई हैव टू चेक ना, लेटेस्ट अथॉरिटी देखनी पड़ेगी, लेटेस्ट उसमें कुछ अमेंडमेंट तो नहीं आई है वो देखना है, सब रूल्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको ये सब रिसर्च करके देन आई विल रिटर्न टू यू। यस मैम, यहाँ पे जो क्लाइंट के पास थे उसको अपनी जो इंश्योरेंस और जो इंश्योरेंस क्लेम की थी वो इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से, तो एक जो कंक्लूजन था वो रॉन्ग भी निकल गया मैम उसमें। हाँ नहीं, मेरे से कंक्लूडिंग जो हम कहते हैं, कंक्लूजन और कंक्लूडिंग दो अलग अलग चीजें हैं। कंक्लूजन है कि आपने कंक्लूजन क्या निकाला आज की पूरी बातचीत का। कंक्लूडिंग है कि अच्छा हम आप से लेकर के अगली मीटिंग तक क्या करने वाले हैं, कि आप ये नो आपने कंफर्म कर लिया कि ये फैक्ट्स है, आपकी ये इन्फॉर्मेशन है, ये कागज है, ये कागज नहीं है, ये आपने बनाने हैं, ये आपने करना है, ये मैं करूंगा नेक्स्ट में। तो ये कंक्लूडिंग कहलाती है। तो और जहां तक हम लोग ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि अपना जो काम करो हमेशा असेस करो खुद ही कि आपके हिसाब से क्या तो आपने अच्छा किया और क्या उतना अच्छा नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम उस पर फोकस करना है कि वो वाली गलती फिर से नहीं करनी है। यस मैम। सो वेल डन। ओके, नेक्स्ट ग्रुप। अब हमारे पास 2:50 हो गया है, 5 मिनट बचे हैं। Who is going next? करण तो बोल चुके हैं पहले। मैम everybody else please mute yourself. Anukriti, Karan.
हाँ ज्योति बोलो। यस मैम, तो हमारे ग्रुप में 4 लोग थे एंड वी वर ओनली एबल टू कोऑर्डिनेट। आई वाज ओनली एबल टू कौन कोऑर्डिनेट चार थे? ज्योति तो पहले बोल चुकी है ना, बाकी कौन है जिसने नहीं बोला आपके ग्रुप में? मैम। तो मैं मैं था। बस प्रेजेंट। करण भी बोल चुके हैं, ज्योति भी बोल चुकी है, और कौन है ग्रुप में आपके? मैम 2 लोग से कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था मैम। जया एंड मतलब जयदीप। रिस्पॉन्ड। अच्छा मिले जया नहीं, एंड ठीक है चलो ओके बताएं। मैम मैटर ये था मैम कि पहली बार मैं ज्योति आवाज बंद हो गई करण की। रहा था जैसे लॉ और फैक्ट्स। हेलो, आई एम हाँ जी ऑडिबल मैम? हाँ जी हाँ जी। मैम फर्स्ट टाइम ज्योति से कन्वर्सेशन हो रहा था, तो उस हिसाब से मैम ऐसा फैक्ट हम लोगों ने चूज किया कि मतलब जिसके बारे में करण आई थिंक यू विल हैव टू स्टॉप, ज्योति विल हैव टू स्पीक, आपकी आवाज फिर तो मैम बंद हम हो लोगों रही ने है। एक लीज का मैटर उठाया। हेलो, बार बार आपकी आवाज यस मैम। कट रही है। मैम एक्चुअली नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा, तो फिर मैम उसी के लिए वजह से। तो मैम मैम रीसेंट टॉपिक से हम लोग ने अपना वो उठाया, मतलब लीज का मैटर उठाया जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमें लॉ के बारे में भी नॉलेज होगा उस चीज़ का, ताकि दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ना हम लोग का टॉक ऑनलाइन। तो फिर मैम लीज का लॉयर टॉपिक को उठाया। मिलने फर्स्ट टाइम ही जाते हैं करण, लॉयर को मिलने पहले से दोस्ती करके नहीं जाते हैं, लॉयर नया ही होता है। इंटरव्यू हो रहा था ना, तो थोड़ा बस एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराने के लिए मैं बस, तो फिर कि ताकि लॉ भी बता सके, ये है मतलब इंटरव्यू अच्छे से हो जाए इसलिए मैम। ओके ओके। तो मैम लीज का मैटर उठाया था, क्योंकि अभी हमारे में रेंट कंट्रोल एक्ट चल रहा है, तो उसी के बेस पे फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक बार मैंने लॉयर बना था, एक बार ज्योति लॉयर बनी, फिर एक बार मैं क्लाइंट और वो क्लाइंट बने। तो डिस्कशन काफ़ी अच्छा रहा, और मैम टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, और मैम एक दूसरे को फैक्ट्स भी जितना हो सका वो अच्छे से एक दूसरे को इंटरप्रेट भी कर सके, लॉ भी। आपकी आवाज बंद हो हम लोग गई को पता था अभी जितना चल रहा है कि मतलब क्या कौन सा लगेगा, वो हिसाब से हम लोगों ने मतलब करेक्टली जितना हो सका उतना लगाया, मतलब क्योंकि हमें रिसेंट का चल रहा था तो पता भी था थोड़ा बहुत। तो मैम इट्स क्वाइट गुड कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड ज्योति। कुछ नहीं मालूम चला कि क्या गुड था उसमें? मैम गुड तो यही था कि मैम कि मतलब दोनों एक दूसरे पहली ऐसा लग नहीं रहा कि पहली बार नहीं, अभी बात कर जैसे रहे हम लोग, अरे नहीं करें, जब आप फीडबैक दे रहे हो ना तो आप बताओ कि उन्होंने पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे, फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे, फिर प्रोबिंग क्वेश्चन पूछे, पिगी बैकिंग की, तब तो मैं लगा कि हाँ ये अच्छे से फैक्ट गैदरिंग की, और हमने खुद ही फैक्ट्स अच्छे से बता दिए, तो फिर तो लॉयर ने तो कुछ नहीं किया ना। हम जब फोकस कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप में ये अच्छा डिस्कशन हुआ, मगर क्या डिस्कशन अच्छा हुआ, उसमें क्या चीज अच्छा था? कि मैम वो लॉयर ने प्रेजेंट बहुत एक्टिवली उसने सुना, उसने पैसिवली सुना, उसने that is the kind of information we want you to tell us. यस मैम, मतलब आपकी आवाज बंद हो गई फिर से। था उसमें, मतलब उसने पहले वो जो कॉन्फिडेंशियल वाला, मैम कॉन्फिडेंशियल वाला जो स्टेटमेंट था उसने काफ़ी अच्छा बोला, फिर मैंने भी उसका रिप्लाई और अपने फैक्ट्स को बहुत अच्छे से उसको ब्रीफली बताया। फिर उसने जो मतलब जैसे लॉयर एक अच्छे से मतलब क्लाइंट्स को इंटरप्रेट करता है हर चीज लॉ, उसने काफ़ी अच्छे से किया मैम। बस आपने एक प्रॉब्लम बहुत थी लॉयर्स के साथ यही नहीं, नेटवर्क। आप कह रहे हो जैसे लॉयर अच्छे से इंटरप्रेट करता है, आपने बहुत लॉयर्स को मिले आप? मैम एक आध बार इंटर्नशिप में मैंने देखा है, तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा। ठीक है ओके। तो चलो नेक्स्ट और ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप, लास्ट ग्रुप फॉर टुडे, जो बाकी लोग बच्चे हैं कल पर प्रेजेंट करेंगे। हेलो मैम। हाँ लोकेश। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैम आज हमारे ग्रुप में तो सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, और सबने एक बार क्लाइंट और फिर एडवोकेट का रोल किया अपने प्रैक्टिस में। वेरी इम्प्रेसिव, वेरी गुड। यस मैम। और सबसे पहले मैंने और मनन ने किया था, तो फिर जब हमारा कन्वर्सेशन ख़त्म हुआ इंटरव्यू, तो फिर हमने बाकी के जो 2 ऑब्जर्वर हमने बनाए थे उनसे फीडबैक लिया, फिर अगला राउंड किया, फिर फीडबैक लिया, फिर इसी तरीके से 4 राउंड करके मैंने प्रत्येक बार फीडबैक लिया सबसे। तो इसमें यस मैम, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फर्स्ट वाले जो कन्वर्सेशन हुए थे तो उसमें कुछ चीज़ें बात नहीं हो पाई थी, जैसे फीस क्या होगी, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट मैंने सेकंड राउंड में वो सेट कर लिया था 15 मिनट्स का। उसके बाद प्रोबिंग क्वेश्चंस वगैरह
उस पर सुधार किया सेकेंड राउंड में। ऐसे करके मैम थर्ड और फोर्थ राउंड तक जाते जाते बहुत ज़्यादा परफेक्टनेस की ओर जा रहे थे, मतलब पूरा परफेक्ट नहीं हो पाए थे। और फिर भी मैम लास्ट में जो हम लोगों को प्रॉब्लम हुई वो ये रहा कि हमें सारा लॉ पता नहीं था, क्योंकि हम चारों ने जो 4 तरह के इंटरव्यू किए थे तो 4 तरह के केसेस भी लिए थे। पहला केस क्रिमिनल था, दूसरा फैमिली, तीसरा आरटीआई से रिलेटेड, चौथा कंज्यूमर एक्ट से रिलेटेड। तो चारों तरह का केस लिए, तो फिर चारों तरह का फैक्ट मुझे उस वक्त ध्यान में नहीं था, किसी को भी एक्चुअली ध्यान में नहीं था। थोड़ा बहुत उसमें ये डिस्कशन हो पाया कि ये जो केस है किस ट्राइब्यूनल के पास या किस कोर्ट में डिस्कशन के लिए मतलब जाएगा, इस विषय पे थोड़ा बहुत चर्चा हुई। और अंत में ये फी से रिलेटेड कुछ बातें हुई, जैसे कि अभी हम लोग आपके लिए फ्री में विजिट कर देंगे, लेकिन फी बाद में ली जाएगी, वकालतनामा वगैरह बाद में साइन करवाया जाएगा। और अगर आप उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन पे थोड़ा बहुत लास्ट राउंड में चर्चा हुई कि अगर आप कैपेबल नहीं है पे करने के लिए तो आपके लिए ये व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, आप इस तरीके से जा सकते हैं, या प्रो बोनो हम लोग आपके लिए केस लड़ेंगे, इस तरीके से। तो मैम फर्स्ट राउंड तो हमारा उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फोर्थ तक जाते जाते हम लोगों ने बहुत हद तक सुधार कर लिया। वेरी हैप्पी टू हियर दैट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होता चला जाएगा। अच्छा, अभी आज की क्लास खत्म करते हैं। मैं 2-3 आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ चीजें जो आप लोगों ने मुझे वो भेजी है ना, प्रॉब्लम्स भेजी हैं। सो आई वांट टू शेयर स्क्रीन एंड शो। आई डू नॉट वांट द स्टूडेंट्स हु हैव सेंट मी दोस केस सिनेरियोस और दोस डॉक्यूमेंट, आप अपना तो पहचान पाएंगे, but do not respond. I do not want the identities of the student to be known of the documents I'm going to show. And for us to reflect that these are the kind of things one has to be very careful about when you are sending documents, what to take care of. So, present a window. So, एक window है ये बाद में दिखाते हैं, पहले दिखाते हैं ये शेयर। तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाली इसमें, हैंड रिटन उन्होंने स्कैन करके भेजा है, बट व्हाट दिस पर्सन हैज नॉट पेड अटेंशन टू इज कि इसके साथ में आपने और क्या चीज क्लिक की है। So you have to be very careful before you send it to see what is it that you are sending. Certainly, it's a good thing to have handwritten and then scanned it, but when you're clicking the photo, crop it. Unnecessary items should not be visible to the other person. Then we have another window I want you to see is now look at this one. This is the font which has been used by one student. We do not need 17 font. When we are sending a problem, using a font of 17 is not something which is desirable. Standard font for correspondence is 12 and usually 1.5 space. In the courtroom papers, we need the font of 14 and double space. So you have to follow the formats for different communication. Client को इतना बड़ा 17 के font में लिख के आप चिट्ठी नहीं भेज सकते हो. So you have to be careful about what kind of fonts are you using when we are preparing your documents. We have another one, a handwritten one. No, this is the same. Okay. Here is another handwritten one. Again, look at 4 words. No, this is a 18-page document. So there's a lot of wastage of resources in this kind of space being wasted. It's double space, handwritten with 4 to 5 words. Some of them have only 3 words in a line. So that's not really best presentation in terms of the visuals. So when we said communication, paralinguistics, there's a lot of things that we think about when we read documents like this. The last thing I want you to look at is your emails. मैम वो विजिबल नहीं, जो आपने अभी दिखाया था ना, वो विजिबल हुआ नहीं।
Ma'am, your mic is mute, ma'am. Okay, so present. I want you to look at my email. Again, look at the titles. Client interview base, client interview facts, client interview role play. This was the suggested one. Draft regarding facts of case, client interview, moot court. This is a different one. So quite a many of you followed what was asked you to do to follow this title, but you can see that many of you have not followed. Remember, as a lawyer, you have to learn to follow formats. How do I again present it? So as lawyers, you will have to learn that formats are very important. If the title of the case, of your petition has to be in a certain format, it has to be a certain format. So therefore, learn to follow the formats. For our next round of the first round of exam, I've said when you will send me the link, the subject line of your email will be such and such. It is on your dashboard. So kindly follow that rule. Do not give any heading that you want to give. I've told you that this is the heading, and these are the small things you have to start taking care of. Because if there is in the legal drafting, format is very important. One of the important things. And this my direction that no, use this subject headline is only a question of format. So this was the last thing I wanted to say. But I do hope that you will take care of the papers that you send. That they also communicate about your personality, about your persona, about your character, about your diligence. Lots of things are conveyed in the manner you present your information. So the samples I have given you are not presenting a very good picture of you. So they pay attention there also. We said communication is not only verbal and oral. There are so many ways in which we convey things. So okay, for the time being, it's all right. But tomorrow, everybody has to be briefed, the remaining groups, so that then we can have a look at the clips from Akrosh and have an analysis of that. Okay? Hello, ma'am. Hansi. I have a Hello. Yes. Hello. Yes, ma'am. Ma'am, I got two other person in group. तो मैम उनमें से एक है विकास and another one is विवेक. तो मैम विकास ने तो straight away deny कर दिया participate करने से because of network issue. आप कल बता देना ना मुझे. हाँ मैम, क्योंकि हम आज कुछ एक्टिविटी कर नहीं पाए, क्योंकि मैम जो विवेक है उन्होंने बोला कि उन्होंने कल ज्वाइन करी है क्लास फर्स्ट टाइम, तो उनको कुछ आइडिया है नहीं. तो फिर मैम व्हाट शुड आई डू? शुड आई ज्वाइन अनदर ग्रुप? और चार लोग हैं ना, नो तो मैम, एक ने ओनली मना थ्री. कर दिया, एक नया है. नो मैम, ओनली 3 इंक्लूडिंग मी. सब ग्रुप में 4 हैं. नो मैम, मेरे इसमें मैम 3 दिखाया है. मैं देखती हूँ आपका कौन सा. यस मैम. हाँ, लास्ट ग्रुप में एक है ना आपका LC2 का शायद बच्चा होगा. विवेक है, अरुणिता मिताज आपके ग्रुप में है. अरुणिता मिताज आज प्रेजेंट है अभी. क्या आपके यहाँ 4 हैं? विकास, विनय, विवेक एंड अरुणिता. ओके मैम, वो फिर कुछ अरुणिता काफी रेगुलर आती हैं, उनके साथ कर लें. ओके ईमेल मैम, आई पे कांटेक्ट. फोन नंबर नहीं है. हाँ, उनका ईमेल है. ओके मैम, आई कांटेक्ट हर. ओके, थैंक यू मैम. ओके मैम, एक छोटी सी क्वेरी थी मेरी. जी. हाँ मैम, ये था कि 4 लोग का जो ग्रुप बना है, तो जो 17 को जो एग्जाम लगनी है ना, उसमें ये वाला नहीं चलेगा. नहीं, तो उसमें तो हर बंदे को एक बार लॉयर और एक बार क्लाइंट दोनों बनना है. टोटल मतलब 4 इंटरव्यू हो जाएंगे. हाँ, वो सबको करना पड़ेगा. सब जने एक दफा लॉयर बनेंगे, एक दफा क्लाइंट बनेंगे. और उसका एक और कंप्लीट वो वीडियो एग्जाम सिर्फ 2-2 के ग्रुप में ही होगा.
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें 4 नहीं होंगे, सब 2 ग्रुप, दो बार ही होएगा वो। ठीक है, ओके। ओके। Ma'am, I wanted to say something. Ma'am, will it be possible कि हम लोग को चाहे facts ना पता हो पहले, but we at least know the area of law in advance, ताकि हम लोग वो पहले पढ़ के आए। बिकॉज उस टाइम पे ऑन द स्पॉट इट गेट्स डिफिकल्ट। हम लोग शुरू से सिर्फ सब लोगों को यूनिवर्सली वो प्रॉब्लम आ रही है। आई माई सेल्फ फेस द प्रॉब्लम। सुपरफिशियली लॉ पता होता है, बट वो गाइडेंस देने के टाइम पे लाइक यू सेड इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, बट वो आ नहीं पाती वो क्रेडिबिलिटी फिर उस टाइम पे। अमित, आप ये लिस्ट बना सकते हो? अमित है क्या? यस मैम। अमित, आप सब स्टूडेंट्स को बोलो कि अपने जो उनका एरिया है ना, वो आपको लिख के भेजेंगे। तो आपने जो एक्सेल फाइल में दिया था ना, यस वो आप मुझे उसमें सब्जेक्ट हेडिंग बना के भेजो कि उन्होंने किस एरिया में। जब आपने वो एक्चुअल सेक्शंस नहीं बताने हैं, हमें 4 एरिया में डिवाइड करना है कि हमारी टॉर्ट की प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्ट की है, फैमिली की है या क्राइम की है। ओके ठीक है, यस तो वो करा के भेज दो, फिर मैं आपको भेज दूँ। ओके मैम। एक प्रॉब्लम